Good morning everyone. I am Sharon. I welcome you all on the official channel of Erudition Studies. ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 20th, 21st and 22nd of August ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜੌਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ 100% ਜੋ ਹੈ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਓਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਲਰਾਈਟ, ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਐਂਡ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਲੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀ ਪੋਸਟ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਓਲੰਪਿਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਨਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ 2020 ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ 4 ਮਾਸਟਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਔਰ PDF ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਅਰ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਰਸਟ ਸਮੋਕ ਟਾਵਰ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਟਡ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੋਕ ਟਾਵਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਆਨਸਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ। ਆਲਰਾਈਟ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਸਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੋਕ ਟਾਵਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ। ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜੋ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ 23rd of August ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਲਰਾਈਟ, ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸਮੋਕ ਟਾਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ 1000 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਜੋ ਹਵਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਓਕੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਮੋਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਕੋਪ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਮੋਕ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲਰਾਈਟ, ਔਰ ਹੁਣ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦਾ PM 2.5 ਐਂਡ PM 10 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸੇ ਟਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਟਾਵਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੰਥਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ CM ਕੌਣ ਨੇ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਐਂਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਨਿਲ ਬਾਈਜਾਲ, ਰਾਈਟ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੇਸਲੈਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸ। ਓਕੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ? ਆਨਲਾਈਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਦੈਨ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਟ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ MLAs ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 66% ਤੱਕ ਦਾ ਹਾਈਕ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਂਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਸਕਣ, ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਓਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ UPI ਬੇਸਡ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਪਾਰਕਿੰਗ। ਓਕੇ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਦਿੱਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਕਲਾਊਡ ਬੇਸਡ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਲੀ ਗਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਤੱਕ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਓਕੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2, ਵਿਚ ਹਾਈਵੇ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਦ ਫਸਟ EV ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹਾਈਵੇ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਕਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ EV ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल फ्रेंडली राष्ट्रीय मार्ग बन गया है? तो इसका आंसर है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। ओके, तो देखो जो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਾਈਵੇ ਬਣਿਆ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇੰਪੋर्टेंट ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ, ਓਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਈਵੀ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ। और इस हाईवे के उपर बहुत ही वड्डी गिनती दे विच ना सोलर बेस्ड इलैक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का एक बहुत वड्डा नैटवर्क है, राइट। और इन्हां स्टेशनस का नैटवर्क जो है इनू किहड़ी भारत सरकार की योजना है जिस दे तहत बनाया गया सी, तो यह है फेम 1, ओके। तो फेम हुंदा आ फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ओके। तो देखो ये भारत सरकार की एक पहल हैगी है फेम, जिंदे विच जिहड़े ई वहीकल्स हुंदे आ ना इन्हां नूं प्रमोशन करन दे लई स्टार्ट किया गया सी। और ऐसे तहत ही जिहड़े चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इन्हां नूं डेवलप किया जा रहा है। इस दे नाल नाल जिहड़े ई वहीकल हैगे आ इन्हां नूं खरीदण दे लई गवर्नमेंट वल्लों बहुत ज़्यादा सबसिडी प्रोवाइड की जाती है, ताकि पेट्रोल एंड डीजल दी जिहड़ियां गड्डियां इन्हां दे उपर अपनी डिपेंडेंसी नूं घटाया जा सके और लोग सबसिडी दे करके ही सही पर जिहड़े इलैक्ट्रॉनिक वहीकल्स हैगे आ उन्हां वल जाण, ओके। हुण आपां कुछ रीसेंट न्यूज़ देखांगे। तो देखो फेम जो है जिन्ना मैं तुहानूं हुणे जिक्र किया, एंड जो फेम 2 है ना इस दे विच हाल ही विच अमेंडमेंट कीतियां गईयां, राइट, जिस दे विच की बोलिया गया है इंडिया दे विच जिन्ने भी इलैक्ट्रिक वहीकल बनणगे जिहड़े 2 व्हीलर रहणगे, राइट, इन्हां दी सबसिडी ना पहलां दित्ती जांदी सी 10,000 रुपीज़, तो हुण इस नूं कर दित्ता गया 15,000 रुपीज़, ओके। तो जिहड़ी फेम स्कीम है इनू भी हाल ही दे विच एक्सटेंड किया गया 2 ईयर्स के लिए, ओके। तो हुण पहलां ये 2022 दे विच खत्म हो जानी सी, पर हुण इनू मार्च 2024 तक लिए एक्सटेंड कर दिता गया। दैन इंडिया ने एक टारगेट रखा होया है कि अपन ना इलैक्ट्रॉनिक वहीकल वाला एक देश बन जाएंगे 2030 तक, ऑल राइट। दैन जो तमिलनाडु है इन्होंने इंडिया का पहला एक्सक्लूसिव पार्क जो है एस्टैबलिश करने की घोषणा की है, जो कि इलैक्ट्रिकल वहीकल्स के लिए ही होएगा, ओके। दैन इंडिया और बोलीविया इन्हां दोनों ने साइन किया एक एग्रीमेंट किस दे विच डेवलपमेंट करन दे लई और इंडस्ट्रीयल यूज़ दे लई लीथियम बैटरीज लई, ओके। और इन्हां दा यूज़ किया जाएगा इलैक्ट्रिक वहीकल्स नूं पावर देने लई, ऑल राइट। आफ्टर दैट जो ओला कंपनी है इन्हां ने प्लान किया है कि वर्ल्ड दा लार्जेस्ट स्कूटर चार्जिंग नैटवर्क ये एस्टैबलिश करनगे इंडिया दे विच ही, राइट। आफ्टर दैट जिहड़ी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है इन्होंने रिलीज़ किया ग्लोबल इलैक्ट्रिक वहीकल आउटलुक, ओके। ये है कि इस रिपोर्ट दे विच बोलिया गया है कि 3 मिलियन नवे इलैक्ट्रिकल जिहड़े वहीकल्स है ना कार्स है इन्होंने 2020 दे विच रजिस्टर किया गया अपने BEE यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी वालों, राइट। इनका नाम है गो इलैक्ट्रिक कैंपेन, राइट। और इनू ना आंध्र प्रदेश की जो स्टेट एनर्जी कंजरवेशन मिशन है इहदे नाल मिल के ही स्टार्ट किया गया सीगा। इस तो बाद IIT दिल्ली जो है ये पहला इदां दा इंस्टीट्यूट बनया जिसने कि कार्बन फुटप्रिंट्स नूं 50% तक घट कर दिता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, Amazon Alexa गोट होम वॉइस इन इंडिया। तो जो Amazon दा Alexa है ना इनू भारत दे विच किस दी आवाज़ मिली है, तो इन्हां नूं मिली है अमिताभ बच्चन दी आवाज़, ओके। तो देखो Amazon जो है इन्होंने हाल ही दे विच की बोलिया है कि जो बॉलीवुड स्टार है अमिताभ बच्चन इन्हों हुण असीं अलेक्सा दे लई यूज़ करांगे, राइट। और Amazon ने अपने नाल नवे कस्टमर जोड़न दे लई वाला किया ऑब्वियसली, बट इस दे नाल नाल जिहड़े इन्हां दे एट प्रेजेंट कस्टमर्स है उन्हां नूं भी खुश करन दे लई सैलीब्रिटी वॉइस फीचर ये लॉन्च किया है, ओके। और इस फीचर की जो स्टार्टिंग की गई सी ये अमेरिका के एक्टर है सैमुअल जैक्सन, ओके, उन्हां दे नाल अमेरिका दे विच कीती गई सी, राइट। हुण इंडिया दे विच इहदी शुरुआत की गई है अमिताभ बच्चन जी दे नाल, ओके। अगर आपां गल करते हैं पहले साल दे विच तुहानूं ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ 149 रुपीज़ की कीमत दे नाल मिलेगी और ये 1 ईयर दे लई तुहानूं मिलेगी, राइट। और Amazon पिछले कुछ महीनों तो अलेक्सा दे नाल जो बच्चन की आवाज़ है उन्होंने आपस दे विच कंपैटिबल बनाने दे लई काम भी कर रहा सी, ओके। Amazon नूं कदों फॉर्म किया गया तो 5 जुलाई 1994 दे विच, ओके। और इहदे जिहड़े फाउंडर ने उन्हां दा नाम है जेफ बेजोस, ऑल राइट। और इहदा तुहानूं हैडक्वार्टर मिलेगा वाशिंगटन जो कि US दे विच है। अगर आपां रीसेंट न्यूज़ की गल करिए तो Amazon वैब सर्विसिज जो है इन्होंने एक्वायर किया है एक मैसेजिंग ऐप। इस ऐप का तुसीं नाम याद रखोगे विकर, और ये विकर नाम की जो ऐप है इनू 2012 दे विच फाउंड किया गया सी, ओके। और जो जेफ बेजोस है इन्होंने हाल ही दे विच स्पेस विच ट्रैवल किया है।
इन्हां दी जो ऑरिजिन कंपनी है तुहाडे लई इंपॉर्टेंट रहेगी, इसका नाम है ब्लू ऑरिजिन। ओके, ये इन्हां दी स्पेस एजेंसी है, राइट। और ये दूसरे बिलीनियर बने ने जिन्हां ने कि स्पेस दे विच ट्रैवल किया है। और हाल ही दे विच ही कुछ दिन पहला ने अनाउंस किया इन्होंने कि 25 अगस्त को ये अपना सैकेंड स्पेस फ्लाइट भी लैके जाएंगे। ओके, और एमेजोन के न्यू CEO के वजों एंडी जैसी को अपॉइंट किया गया। पहला इनके CEO होंगे सी जेफ बेजोस, राइट। और इन्होंने अपना अस्तीफा दे दिता है। एमेजोन ने अप्रूवल दे दी है USA दे विच कि जिन्ने भी इन्होंने पैकेजेस है इन्होंने ड्रोन्स के नाल डिलीवर किया जा सकेगा। ओके, एमेजोन ने लॉन्च किया एक वियरेबल फिटनेस गैजेट। इस गैजेट का नाम तुसी याद रखना हेलो बैंड, राइट। इनू तुसी एक बैंड की तरह अपने हाथ के उपर पा सकोगे। और ये आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस के सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाना है। और ये ना तुहाडे बॉडी फैट का 3D स्कैन हो पाएगा जस्ट एक बैंड के नाल, इमेजिन दैट। एंड उस तो बाद ये तुहाडे जो इमोशंस है ना इन्हों भी एनालाइज कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच कॉमिक हीरो हैज़ बीन रॉब्ड बाय फरीदाबाद स्मार्ट सिटी मिशन। तो फरीदाबाद स्मार्ट सिटी मिशन के विच सहायता के लिए किस कॉमिक हीरो नू सहयोगी के वजों चुनिया गया है। तो इसका आंसर है चाचा चौधरी। ओके, तो फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने सोशल मीडिया के उपर अपनी जो इनिशिएटिव है ना इनू उत्साहित करने वास्ते ही जो कॉमिक हीरो है चाचा चौधरी इन्हों अपने सहयोगी के वजों शामिल करने की हाल ही में घोषणा की है, राइट। और ये जो सोशल मीडिया अभियान है इनका एम की है कि ये जो एजेंसी है ना ये जिन्ने भी कदम उठाएगी उन्होंने बारे दे विच पब्लिक नू अवेयर किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। ओके, और इनके लिए जो टॉकिंग कॉमिक्स है इन्हों भी एक पार्ट बनाया जाना है, राइट, ऐसे सोशल मीडिया कैंपेन का। और हर एक सोशल मीडिया की पोस्ट होएगी ना उस दे विच चाचा चौधरी दैन साबू और इन्हों के जोड़े बाकी साथी है वो बुनियादी ढांचों का सही उपयोग करने वास्ते ना लोगों को एडुकेट करेंगे, ऑल राइट। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैगी है इन्होंने 100 इदां दे सिटीज़ चुने हैं जिन्होंने कि स्मार्ट सिटीज़ के रूप में विकसित करने के लिए सिलेक्ट किया गया, राइट। और ये हर एक सिटी को डेवलपमेंट करने के लिए 5 साल के अंदर अंदर 100 करोड़ रुपीज़ के करीब दिता जाता है। ओके, और 2016 के विच ये जो मिशन है ना इनू हिस्सा बनाया गया सीगा फरीदाबाद का भी, राइट। और फरीदाबाद जो स्मार्ट सिटी लिमिटेड है इन्होंने हाल ही दे इनू इनकॉर्पोरेट कर लिया है। ओके, हुण अगर आप रीसेंट दे विच देखते हैं तो जो स्मार्ट सिटी अवार्ड्स है 2020 के इन्हों अनाउंस किया गया हाल ही दे विच स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत। ओके, और जो सूरत है एंड इंदौर है इन्होंने बेस्ट अवार्ड ले ओवरऑल परफॉर्मेंस के विच स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 के विच। और अगर आप स्टेट्स के देखांगे तो यूपी ने टॉप किया सीगा। ओके, MP दूसरे नंबर के उपर एंड तमिलनाडु रहा तीसरे नंबर के उपर। इस तो बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है इन्होंने लॉन्च किया ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज। ओके, ये किस लिए है ताकि एक ऐदा का इन्वायरमेंट बनाया जा सके जिस दे विच की अच्छा फूड खाने की यानी कि राइट फूड की प्रैक्टिसिस जो है इन्हों डेवलप किया जा सके लोगों के विच। द ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल ये वाला चैलेंज जो है इनू भी लॉन्च किया गया सीगा ताकि जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इन्हों सेफ बनाया जा सके, कंफर्टेबल बनाया जा सके और अफोर्डेबल बनाया जा सके सारे ही शहरों के विच पब्लिक नू। ओके, इस तो बाद जो अपने देश के प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मोदी इन्होंने इनोग्रेट किया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नू, ठीक है, वाराणसी के विच किया गया। और टोटल 614 करोड़ रुपए इन्हों के उपर लगाए जाएंगे वाराणसी की डेवलपमेंट के विच। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन्होंने एक मास प्रोग्राम चलाया, राइट, ताकि जिन्नियां भी सिटीज़ है उन्होंने डिसइनफैक्ट किया जा सके। और ये भी स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंडर ही किया गया सी, किस लिए ताकि जो कोविड-19 का पैंडमिक आया इस दे विच डिसइनफैक्ट करके लोगों को इस पैंडमिक तो दूर रखा जा सके। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, हु लॉन्च्ड प्रूफ मोबाइल एप्लीकेशन। तो जो प्रूफ मोबाइल एप्लीकेशन है ये किन्ना ने लॉन्च की है, ये रहनगे जी मनोज सिन्हा। ओके, तो तुहानूं पता ही है कि मनोज सिन्हा कौन ने, ये जम्मू एंड कश्मीर दे LG ने। ओके, और इन्होंने ही प्रूफ नाम की ऐप नूं लॉन्च किया है ताकि जिन्ना भी इत्थे दी गवर्नमेंट का सिस्टम है ना उन्होंने ट्रांसपेरेंसी के नाल लोगों तक पारदर्शिता के नाल पहुँचाया जा सके। ओके, तो जो प्रूफ है इनकी फुल फॉर्म की है, ये है जी फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी, ऑल राइट। इनका मेन मकसद की है कि जो J&K दे विच तुहानूं पता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंदे हैं हर एक स्टेट विच, राइट।
ਉਹਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਹੀ ਐਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ J&K ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ J&K ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਨਿਕਾਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਲਰਾਈਟ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ। ਜੋ J&K ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਐਂਡ ਜੰਮੂ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਸੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵਰਲਡ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਰੇਲਵੇ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਇਹ ਚਨਾਬ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਚਨਾਬ ਬ੍ਰਿਜ ਜੋ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੈਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ 149 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਦਰਬਾਰ ਮੂਵ, ਓਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਐਂਡ ਜੰਮੂ 2 ਕੈਪੀਟਲ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜੋ ਪੋਥੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਾਈਲਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨੇ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਮੂਵ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਸੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ 2 UTs ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਣੀ J&K, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਰਟ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬਣੀ ਸੀ ਲਦਾਖ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਈਸਟਰਨ ਪਾਰਟ, ਓਕੇ। ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੇਡ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਕੇ। ਔਰ ਜੋ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ। ਕਿਸ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ PM ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਰਬਨ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ J&K ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 28,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਲਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਕਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਹ J&K ਐਂਡ ਲਦਾਖ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਲਰਾਈਟ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6, which hospital has become first Indian hospital to houses a fire station inside its premises? ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਿਆ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਏਮਸ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਔਰ ਐਦਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਏਮਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਏਮਸ ਨੇ ਹੀ, ਓਕੇ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ DFS ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਓਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਆਲਰਾਈਟ। ਰੀਸੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਿਲੇਟਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕਿ MBBS ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਓਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਏਮਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ OPD ਦੇ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫਰੀडम फाइटर
राजकुमारी अमृत कौर जी के नाम के उपर, ठीक है। और जिहड़े राजकुमारी अमृत कौर ने ये अपनी इंडिया के पहले हैल्थ मिनिस्टर भी सीगे, ओके। नाल ही इंडिया दे विच 3 बल्क ड्रग पार्क एंड 4 मैडिकल डिवाइसिस पार्क इन्हां नूं एस्टैबलिश किया जाना है, कित्थे? बठिंडा पंजाब दे विच, ठीक है। ताकि जिन्ने भी फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स होंदे आ या मैडिकल डिवाइसिस होंदियां ना, इन्हां नूं ज़्यादा तो ज़्यादा एक्टिवली प्रोडक्शन की जा सके इंडिया के अंदर ही, ओके। इस तो बाद जो इजराइल है, इन्हां ने प्रोवाइड किया आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस दे बेस टैक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट नूं एम्स दे विच ही, ओके। ये किस लिए किया गया? ताकि जो कोविड-19 का पैंडमिक है इसनूं कॉम्बैट किया जा सके। इस तो बाद कोपैल-19 नाम की जो ऐप है इनू लॉन्च किया गया ताकि प्लाज्मा के जिहड़े डोनर है जिन्हें भी दिल्ली दे विच होणगे उन्हां सब नूं ही ट्रैक किया जा सके। तुहानूं सब नूं ही पता होएगा प्लाज्मा थैरेपी के बारे दे विच, राइट। तो जिहड़े भी इदां दे पर्सन जो कि पहला कोविड दे नाल ग्रस्त हो चुके ने, ओके, और उस तो बाद वो ठीक हो गए तो उन्हां दे अंदर एंटीबॉडी बन चुकी है, तो उन्हां दा प्लाज्मा दूसरे रोगियों के अंदर इंसर्ट किया जाता है जिस दे नाल कि उन्हां दे विच भी एंटीबॉडीज डेवलप हो सकन, ऑलराइट। आफ्टर दैट इंडिया का पहला रिमोट हैल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम इनू सैट किया गया ऋषिकेश के विच, ओके। और इनू एम्स एंड भेल यानी कि भारत हैवी इलैक्ट्रॉनिक लिमिटेड इन्हां दोनों ने ही किया सीगा, ओके। इस दे विच जो उत्तराखंड स्टेट के जिन्ने भी कोविड-19 के पेशेंट्स है इन्होंने मॉनिटर करने के लिए सैटअप किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी न्यू वंदे भारत ट्रेन्स हैव बीन अनाउंसड बाय द प्राइम मिनिस्टर? तो प्रधानमंत्री ने कितनियां नवीं वंदे भारत ट्रेनों की घोषणा की है? तो इसका आंसर है 75, ऑलराइट। तो तुहानूं पता ही है कि हाल ही दे विच अपना 75वां नंबर का इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। तो अपने प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज़ादी की सालगिरह के उपर ही पूरे नेशन को एड्रैस किया सी, है ना। और ऐसे ही मौके के उपर इन्होंने अनाउंस किया कि 75 वंदे भारत ट्रेन जो है ना इन्हों देश के अलग अलग हिस्सों के चलाया जाना है, ओके। और इस बार जो आज़ादी का महोत्सव है इनू आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम के अंडर मनाया जा रहा है। ये नाम तुहाडे लिए इंपॉर्टेंट रहना है, ओके। और इस दे विच ही बोलिया गया कि 75 वीक्स के विच पूरे नेशन के अलग अलग पार्ट्स नूं जोड़नगियां ये वालियां ट्रेन्स, राइट। और ये जो महोत्सव है इनू 12 मार्च तो लैके 15 अगस्त 2023 तक मनाया जा रहा है, राइट। और इन्ना ही 75 वीक्स के विच इन्ना ट्रेन्स नूं जोड़िया जाएगा देश के कोने कोने दे नाल, ओके। और इस वेले अगर आप एट प्रेजेंट गल करिए ये तुहाडे लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया दे विच इंडियन रेलवेज वालों 2 वंदे भारत एक्सप्रैस ट्रेन चलाई जा रही हैं, ओके। जिहड़ी तो पहली है ये चलती है वाराणसी तो लैके न्यू दिल्ली, एंड जो दूसरी ट्रेन है ये कटरा तो लैके एंड न्यू दिल्ली के विचकार चलेगी, ओके। तो ये दोनों ही रूट भी तुसीं याद रखने हैं। अगर आप रीसेंट न्यूज़ देखिए तो जो सक्सैसफुल ट्रायल किया गया ट्रेन का किंदे बिटवीन जयनगर इंडिया एंड कुरथा नेपाल के अंडर, ओके। और ये जो ट्रेन हैगियां ये इन्हां दोनों ही कंट्रीज दी थावां नूं आपस दे विच जोड़नगियां। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया कि जो CRWC यानी कि सेंट्रल रेल साइड वेयरहाउस कंपनी एंड CWC यानी कि सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन इन्हां दोनों नूं आपस दे विच मर्ज कर दिता जाना है, ओके। इस तो बाद इंटरनेशनल लैवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे ये कदों ऑब्जर्व किया गया? ये किया गया 10 जून नूं साउथ सेंट्रल रेलवेज वालों। तुहानूं पता ही है कि इंडिया दे विच ज़्यादातर तुसीं देखिया होएगा फाटक बंद होंदा है, लोग की करते हैं अपनी एक्टिवा स्कूटर साइकिल खुद भी इहदे नीचों ही पार करना शुरू कर देंगे जिस दे नाल काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स होंदे हैं, राइट। और ऐसे दे लई ही अवेयरनेस फैलाने के लिए 10 जून नूं ये वाला दिन मनाया गया। दैन इंडियन रेलवेज जो है इन्हां ने एक ऑक्सीजन एक्सप्रैस ट्रेन्स इन्हां नूं भी चलाया हैगा इंडिया दे विच, किस लिए? ताकि जिहड़ी भी ऑक्सीजन की शॉर्टेज है ना इन्हां नूं पूरी कंट्री दे विच हैंडल किया जा सके और जल्दी तो जल्दी ऑक्सीजन नूं एक जगह तो दूसरी जगह के उपर पहुँचाया जा सके। दैन नैशनल रेल प्लान इन्हां नूं प्रिपेयर किया गया, राइट, ताकि जो फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम है ना इन्हां नूं 2030 तक अच्छी तरह बनाया जा सके। यानी कि 2030 तक अपना जो इंडियन रेलवे है इन्हां नूं बहुत ज़्यादा एडवांस बनाने की तैयारी चल रही है। इस तो बाद जो वैसटर्न रेलवे जोन है जो कि इंडियन रेलवे का ही एक पार्ट है, राइट, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम, ओके।
हाँ जी, तो ये वाला सिस्टम क्यों किया गया सी, ताकि जिन्नियां भी ट्रेन्स होंदियां ना इन्हां दे एक्सीडेंट्स नूं इफेक्टिव कम्युनिकेशन दे नाल घट किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, हु रिलीज इंडियाज फर्स्ट कैटल जीनोमिक चिप इंडिगाउ। तो भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप जिसका नाम है इंडिगाउ, इनू किन्ना ने लॉन्च किया सीगा, तो ये है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ओके, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंडिया की पहली कैटल जीनोमिक चिप नू लॉन्च किया, और इस चिप नू ना इंडीजीनियस कैटल ब्रीड्स यानी कि जिहड़ियां भी अपनियां भारती जो मवेशियां दी ब्रीड्स है ना, प्रजातियां, इन्हां नू कंजर्व करने के लिए लॉन्च किया गया, राइट। इत्थे ना मैं तुहानूं कुछ ब्रीड्स के नाम दस दिंदी हां, तुसीं 100% इन्हां नूं याद रखना, ठीक है। और ये तुहानूं पेपरां विच आ सकदे और ऑलरेडी आए भी होए है, जिद्दां कि गिर ब्रीड है, ठीक है। दैन कंकरेज नाम की एक ब्रीड है, ओके। इस तो बाद साहीवाल तो बहुत बार पेपर का पार्ट बन चुकी है, ओके। उसके बाद अंगोल, इनके बारे भी काफ़ी बार क्वेश्चन पुट किए गए हैं। तो इदां दी ही सारियां ही ब्रीड्स नूं कंजर्व किया जाना है, ओके। और इस चिप नूं नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटैक्नोलॉजी नैब तो याद रख लेना, ओके, इन्हां ने ही लॉन्च किया है, ओके। अगर आप गल करते हैं कि ये किहड़ी जगह ते मिलेगा तुहानूं नैब, तो यह है जी हैदराबाद दे विच इन्हां ने ही डेवलप किया। और इंडिया की जो गवर्नमेंट है इन्होंने एक टारगेट रखा हुआ है कि 2022 तक, ये वाला साल तुहाडे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जिन्ने भी अपने देश के किसान है इन्हां दी इनकम नूं डबल किया जाना है, ऑलराइट। तो हुण इस चिप दे नाल की होएगा, आपां हुणे कीता कि जिन्नियां भी इंडीजीनियस ब्रीड हैगियां यानी कि इन्हां नूं की किया जाना है, डेवलप किया जाएगा, कंजर्व किया जाएगा, ओके। और इन्हां दे जिन्ने भी आपस दे विच अच्छे अच्छे करैक्टर्स है ना, इन्हां नूं आपस दे विच जीनोम ट्रांसफर करके और होर ज़्यादा अच्छिया ब्रीड्स नूं डेवलप किया जाना है, ऑलराइट। और इहदे नाल की होना है, जदों इन्हां दी अच्छिया ब्रीड्स डेवलप होणगियां तो जिहड़ी इन्हां दी प्रोडक्शन है उस दे विच इनहैंस होना ही होना है। तो इस दे नाल फिर 2022 तक जो इनकम नूं डबल करन दा टारगेट रखा होया है, इहदे विच भी काफ़ी ज़्यादा हैल्प मिल पाएगी, ओके। हुण आपां कुछ रीसेंट दी न्यूज़ देख लैंदे आ। तो मानस नाम की एप्लीकेशन इन्हां नूं लॉन्च किया गया लोगों की मैंटल वैलबींग के लिए, ओके। और स्पैशली इंडियन लोगों के लिए ही लॉन्च किया गया सीगा, ओके। और इहदे विच मैंटल हैल्थ एंड नॉर्मैलिसी ऑगमेंटेशन सिस्टम नूं लॉन्च किया गया, ठीक है। यानी कि जो माइनस है ना, इहदी फुल फॉर्म होएगी मैंटल हैल्थ एंड नॉर्मैलिसी ऑगमेंटेशन सिस्टम, ऑलराइट। इस तो बाद आपां गल कर रहे हैं ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल एंड ऐप, इन्हां नूं लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों, राइट। किस लिए, ताकि ना कनैक्टिविटी की जा सके 3 वे कम्युनिकेशन दे विच। एक तो इंडियन एम्बेसीज, आफ्टर दैट तुसीं कह सकते हो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री एंड इंडिया का जो डायस्पोरा है, इन्हां तिन्नां दे विच ही आपस दे विच ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल दे नाल इन्हां दे विच कायम किया जा सकेगा राबता, ओके। डायस्पोरा की हुंदा है, देखो जो अपने इंडिया के लोग तो हैगे ने पर वो इंडिया दे विच नहीं रहिंदे, वो अलग अलग थावां दे उपर स्प्रैड होई हुई है पूरी पॉपूलेशन, इन्हां नूं इंडियन डायस्पोरा बोलिया जाता है, ऑलराइट। इस तो बाद है द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर, इन्हां ने लॉन्च की ई संपदा नाम की एक मोबाइल ऐप, राइट। इनू हुण किस लिए लॉन्च किया गया सीगा, ताकि ना सिंगल विंडो सर्विसिज प्रोवाइड कीतियां जा सकन, जिन्ने भी गवर्नमेंट के रेजिडेंशियल अकोमोडेशन हैगे है या फिर गवर्नमेंट के ऑफिसिस के स्पेस ने, इन्हां सारियां नूं ही प्रोवाइड किया जाएगा सिंगल विंडो सर्विस, ओके। इस तो बाद डाक पे नाम की ऐप नूं लॉन्च किया गया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वालों, राइट, ताकि डिजिटल फाइनैंशियल इंक्लूजन ये पूरी ही कंट्री नूं प्रोवाइड की जा सके। इस तो बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ग्रीन दिल्ली नाम की ऐप नूं, ओके। ये किस लिए किया गया है, ताकि जिन्ने भी इत्थे दे सिटीजनस हैगे है वो गवर्नमेंट नूं इनफॉर्म कर सकन कि अगर कोई भी पॉल्यूशन कॉजिंग एक्टिविटीज़ किते भी हो रही हैं तो उन्हां दे बारे दे विच दिल्ली की गवर्नमेंट नूं दस्सिया जा सके, ओके। इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया साई नाम की एक एप्लीकेशन, साई की है सिक्योर मैसेजिंग एप्लीकेशन, ओके। एक ही प्रोवाइड करेगी सिक्योर वॉइस मैसेजेस, वीडियो मैसेजेस एंड टेक्स्ट कॉलिंग, ये सारे ही इंडियन आर्मी के जोड़े सोल्जर्स है ना इन्हां नूं प्रोवाइड किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, all women team of 3 armed forces summits which mountain to celebrate 75th Independence Day। तो भारत दियां तीनों ही फौजां दियां सिर्फ औरतां दा एक जत्था जिसने कि आज़ादी की 75वीं वर्षगंढ के उपर किसी पहाड़ नूं सर किया, ठीक है। आपां दसना इस पहाड़ का नाम, तो यह है माउंट मनीरंग, ऑलराइट।
ਤਾਂ 15 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ऑल विमेन ट्राई सर्विसेज की जिहड़ी माउंटेनरिंग की टीम सी ना, इन्हां ने माउंट मनीरंग नूं सफलतापूर्वक फतेह कर लिया। ऑलराइट, और अगर आप देखिए इस माउंट की लोकेशन आपां नूं कित्थे मिलनी है, तो ये तुसीं जरूर याद रखना, ये मिलेगी तुहानूं हिमाचल प्रदेश दे विच। और इस बारी सुतंत्रता दिवस नूं किद्दां मनाया जा रहा है, मैं तुहानूं हुणे ही दस्सिया सी, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तौर के उपर। राइट, और इसे नूं ही कमैमोरेट करन दे लई अलग अलग गतिविधियां कीतियां जा रही अपने पूरे ही कंट्री दे विच। और एस टीम ने भी फिर भाग लिया सीगा और माउंट मनीरंग के उपर नैशनल फ्लैग नूं भी इन्होंने फहराया। ओके, और एस दल दे विच टोटल 15 मैंबर सीगे। और 1 अगस्त 2021 नूं इन्हां नूं एयरफोर्स के स्टेशन तो रवाना किया गया सी। राइट, और एस टीम की जो विंग कमांडर ने, यह भी तुसीं याद रखोगे लीड किन्ना ने किया, तो इन्हूं लीड किया गया भावना मेहरा वालों। ऑलराइट, हाँ जी, इस तो बाद आप रीसेंट दे नाल रिलेटेड कुछ डिफेंस दी न्यूज़ देख लैंदे आ। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इन्हां ने 5th एडिशन लॉन्च किया डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का। ओके, इस तो बाद इंडियन नेवी एंड रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी इन्हां ने साइन किया एक डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट का नाम है जॉइंट गाइडेंस फॉर द ऑस्ट्रेलिया इंडिया नेवी टू नेवी रिलेशनशिप। ऑलराइट, इस तो बाद है सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिता कि जिहड़ियां औरतें हुण तो बाद वो नैशनल डिफेंस अकैडमी के एग्जाम दे विच अपीयर हो सकदियां। ओके, इन्हां ने बोलिया कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इहदे विच जिहड़े आर्टिकल हैगे जिस दे विच की गल कीती जांदी है अपने अधिकारां दी, है ना, उन्हां दा हनन हुंदा है अगर असीं औरतां नूं इस एग्जाम विच बैठण दे काबिल ना समझीए। ओके, इस तो बाद 75th इंडिपेंडेंस डे के उपर प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि सैनिक स्कूलों के विच जिन्ने भी इंडिया के सैनिक स्कूल है हुण इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ फीमेल स्टूडेंट्स के लिए भी ओपन कर दिता जाएगा। ऑलराइट, इस तो बाद फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के विच करवाई गई। इस एक्सरसाइज का नाम है अल मोहेद अल हिंदी। ऑलराइट, इस दे नाल ही फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट, इसका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, INS विक्रांत, बिल्कुल दिमाग दे विच रखना। ओके, इन्होंने ने अपना फर्स्ट सी ट्रायल हाल ही दे विच कंडक्ट किया। क्वेश्चन नंबर 10, इंडियन अक्षय ऊर्जा दिवस यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी डे इनू ऑब्जर्व किया गया किस दिन, यानी कि भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस नू कदों मनाया गया। राइट, तो इसनू मनाया गया 20th अगस्त। राइट, तो देखो ये वाला जो दिन है हर साल ही 20 अगस्त नू मनाया जाता है, ताकि जो रिन्यूएबल एनर्जी है इनू एडॉप्ट करने के लिए और इनू डेवलप करने के लिए लोगों को अवेयर किया जा सके। ओके, और इस दिन की शुरुआत कदों की गई सी, 2004 दे विच इनू शुरू किया गया किंदे वालों, इंडियन मिनिस्ट्री फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सिस वालों। राइट, ये जिवें कि बायोगैस होगी या फिर सोलर एनर्जी होगी या फिर पवन ऊर्जा होगी। राइट, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ही डेवलप किया जाना है, इनके उपर जोर दिता जा रहा है। और इस दिवस के नाल संबंधित जो सब तो पहली बारी जो कार्यक्रम है ना, इनू दिल्ली दे विच ऑर्गेनाइज किया गया सी। तुसीं देखो 20th अगस्त नू ही क्यों चुनिया गया इस दिन के लिए, क्योंकि जिहड़े अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी इन्हां दा बर्थ एनिवर्सरी हुंदी है 20th अगस्त नू। ऑलराइट, इसे करके इसे दिन नू ही चुनिया गया आकाश ऊर्जा दिवस के रूप में। ऑलराइट, इत्थे हुण मैं तुहानूं एक लिस्ट दित्ती है इंपॉर्टेंट डेज की। ये 1 अगस्त तो लैके 21 अगस्त के सारे ही इंपॉर्टेंट डेज है, इन्होंने तुसीं बाद दे विच रीड जरूर कर लेना। ऑलराइट, इस तो बाद आप गल करांगे 11th क्वेश्चन की, विच स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड स्मार्ट हेल्थ कार्ड। तो स्मार्ट हेल्थ कार्ड देने वाला भारत का पहला राज किहड़ा बनिया, तो यह है ओडिशा। ऑलराइट, तो ओडिशा हुण इंडिया का पहला राज बन गया हुआ है। इनू ना एक ओडिशा की ही योजना हैगी है जिसके अंतर्गत लिया गया है। इस योजना का तुसी नाम याद रखना, बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना। ओके, तो तुहाडे कोलों योजना का नाम बोल के ये पूछा जा सकता है कि किहड़ी जगह की है। ऑलराइट, और इहदे नाल इन्होंने की बोलिया कि 96 लाख जो फैमिलीज़ है इन्हों कवर किया जाना है और करीब करीब 3.5 करोड़ जो लोग हैं ना वो इनका फायदा उठा सकणगे। ओके, तो इनका एम हुण की हैगा, इन्होंने बोलिया है कि जिन्नी भी ओडिशा की पब्लिक है उन्होंने बिना किसी परेशानी दे सारियां ही हैल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकन। और ये जो कार्ड है ना ये एक फिक्स अमाउंट के नाल एक डेबिट कार्ड की तरह ही काम करेगा। होर तो होर इस योजना के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है
ਉਹਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਕੀਮਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਸਕੀਮਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਡਸ ਦਾ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ, ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਓਕੇ, ਔਰ ਉੜੀਸਾ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸੇ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਐਂਡ ਸੀਐਮ ਨੇ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ, ਗਵਰਨਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਗਣੇਸ਼ੀ ਲਾਲ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੀਸੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਫੋਰੈਸਟ ਗਾਰਡਸ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਪਰੇਟ ਬਜਟ ਫॉर ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਪਹਿਲੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। इंदौर जो है इंडिया की पहली वाटर प्लस सिटी बनी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत। दिल्ली ने पहला एनिमल DNA लैब इनू सैटअप किया फोरेंसिक साइंस लैब रोहिणी दे विच। ओके, इस तो बाद गल करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 दी, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एंबेसडर ऑफ केरला एडवेंचर टूरिज्म। तो केरला का जो एडवेंचर टूरिज्म है इनके ब्रांड एंबेसडर वजों किसनू नियुक्त किया गया। इन्हां दा नाम बिल्कुल नहीं भुलना, परातू रविंद्रन श्रीजेश। ठीक है, इनू तुसी शॉर्ट फॉर्म दे विच PR श्रीजेश बोल सकते हो। ओके, तो इन्हां दे बारे मैं तुहानू कल दे ओलंपिक के सैशन दे विच दस्सिया सीगा। ये हैगे कौन ने, तो ये अपनी जो हॉकी टीम है ना इहदे विच गोलकीपर ने, राइट। और इन्हां ने ओलंपिक 2020 दे विच बहुत ही ज़्यादा वधिया प्रदर्शन किया सी और बहुत ज़्यादा वाह-वाही लुटी है। ओके, और इस टीम ने तुहानू पता है ब्रॉन्ज मैडल जितया ओलंपिक दे विच किन्ने साल बाद, 41 ईयर्स तो बाद। और इस टीम के जो कैप्टन है उन्हों का नाम है मनप्रीत सिंह, राइट। और यही ओलंपिक्स के विच जो ओपनिंग सैरेमनी हुई सी उस दे विच MC मैरीकॉम के नाल फ्लैग बीयर के तौर के उपर भी गए सी। ओके, अगर आप केरला की कैपिटल देखिए थिरुवनंतपुरम, CM पिनाराई विजयन, गवर्नर आरिफ मुहम्मद खान। रीसेंट दिन रिलेटेड कुछ न्यूज़ देखते हैं तो केरला ने अनाउंस किया 5000 करोड़ रुपीज़ जो कि असिस्ट करने लिए दिते जाएंगे स्मॉल स्केल ट्रेडर्स नू एंड फार्मर्स नू भी। ओके, इस तो बाद इत्थे एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसका नाम है कृषि करना प्रोजेक्ट। इसनू एग्रीकल्चर एंड गार्डनिंग की जो प्रैक्टिस है ना इन्हों वधाउण दे लई किया गया। दैन इन्होंने रिमूव कर दी एज लिमिट ट्रांसजेंडर्स के लिए। हुण यूनीवर्सिटीज़ दे विच किसी भी उम्र दे विच जाके एडमिशन लै सकते हैं। ओके, और इत्थे एक कैंपेन आया क्रशिंग द कर्व। इनू किस लिए लिया गया सी ताकि जो पूरी मास वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा सके, यानी कि कोविड-19 की वैक्सीनेशन की जा सके इसे ही दे अंडर। ओके, इस तो बाद इत्थे एक प्रोजेक्ट आया ड्रीम केरला प्रोजेक्ट, राइट। इस तो बाद केरला के जो हैल्थ मिनिस्टर हैगे सी के शैलजा, इन्हों यूनाइटेड नेशन के वलों अवार्ड दिता गया सी क्योंकि इन्होंने कोविड-19 पैंडमिक के दौरान बहुत वधिया एफर्ट्स किए सीगे। दैन K4 नाम का प्रोजेक्ट ये भी केरला वालों ही जो है लॉन्च किया गया। K4 की फुल फॉर्म होएगी केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, राइट। इहदे विच नैट कनैक्टिविटी प्रोवाइड की जानी है सारियां ही फैमिलीज़ नूं, चाहे वो बिलो पॉवर्टी लाइन ही क्यों ना रहिंदे होण। ऑलराइट, हाँ जी। दैन क्वेश्चन नंबर 13 है, हु हैज़ वॉन बेस्ट एक्टर इन अ सीरीज अवार्ड इन इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न अवार्ड 2021। तो भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबोर्न दे विच बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन्ना नूं दिता गया। इन्हां दा नाम है मनोज बाजपेयी। ऑलराइट, तो देखो ये वाला जो फैसटिवल है ना 2021 का इनू वर्चुअली ही कंडक्ट किया गया कोविड करके। और इहदे विच एक्टर मनोज बाई नूं बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलिया। उत्थे ही जो समंथा हैगे ने इन्हां नूं बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड दे नाल सन्मानित किया गया, राइट। और एक फिल्म हैगी है इनका नाम तुसी याद रखना है फैमिली मैन 2। इहदे विच ही इन्हां दोनों ने ही पार्टिसिपेट किया सी, राइट। और अगर आप देखते हैं कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड किन्हां नूं मिलिया तो यह मिलिया है सुराराई पोत्तरू नूं। ऑलराइट, इस तो बाद विद्या बालन जो ने इन्हां नूं बेस्ट परफॉर्मेंस फीमेल का अवार्ड मिलिया शेरनी दे विच निभाए गए किरदार दे लई। ऑलराइट, और इस तो बाद तुसी याद रखना है बेस्ट डायरैक्टर का अवार्ड अनुराग बासु नूं दिता गया लूडो मूवी दे लई। ओके, और बेस्ट सीरीज़ बनी मिर्जापुर सीजन 2। ओके, हुण इहदे विच जिन्ने भी विनर हैगे सी इन्हां दे पूरिआं दी लिस्ट तुहानूं प्रोवाइड कर दित्ती है। ये लिस्ट नूं तुसीं पढ़ लेना,
पर इहदे विच जो मैं पहलां तुहानूं हुणे दस्से ने ये तुसीं अच्छी तरह याद रखना, डायरैक्टर, एक्टर एंड एक्ट्रेस, ओके, एंड मूवी, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 14, हू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ इंडियन बैंक। इंडियन बैंक के MD एंड CEO के वजों किन्हां नूं नियुक्त किया गया है? इन्हां दा नाम है शांति लाल जैन, ओके। तो शांति लाल जैन की जो नियुक्ति है ये टोटल 3 साल के लिए की गई है। इन्हां ने P चंदूरू इन्हां नूं रिप्लेस करना है, राइट। और अगर आप करंटली देखते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर वजों काम कर रहे हैं। इन्हां ने 1 सितंबर नूं अपना MD एंड CEO ऑफ इंडियन बैंक के वजों कार्यभार संभाल लेना है, ओके। और अगर आप इंडियन बैंक की गल करते हैं तो इनका हैडक्वार्टर तुहानूं चेन्नई दे विच मिलेगा। इनू 1907 दे विच फाउंड किया गया सी, ऑलराइट। हुण आपां कुछ रीसेंट न्यूज़ देखिए जो कि इकोनॉमी एंड बैंकिंग के नाल रिलेटेड ने। तो जो TCS है ये दूसरी इदां दी कंपनी बनी जिसने कि एक मार्केट की जो वैल्यू है ना इनू 13 लाख करोड़ तो उपर क्रॉस कर लिया इंडिया की, ऑलराइट। इस तो बाद जो RBI है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया फाइनैंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। HDFC ने अनवील किया ग्रीन एंड सस्टेनेबल फिक्सड डिपॉजिट स्कीम नू, ओके। इस दे नाल नाल RBI जो है इन्होंने कैंसल कर दिता लाइसेंस केड़े वाले बैंक का, करनाला नगरी बैंक, ओके। और ये रायगढ़ बेस्ड होएगा। इस तो बाद RBI जो है इन्होंने बोलिया कि वो वाले बैंक जिन्हां दियां ATM कैश तो सखणियां रहणगियां, यानी कि जिन्हां दे विच अक्टूबर तो बाद कैश नहीं होएगा इन्हां नूं की किया जाना है, पेनल्टी लगेगी। इस तो बाद सूर्योदय स्मॉल फाइनांस बैंक इन्हें ओपन की हैल्थ एंड वैलनैस सेविंग अकाउंट, ऑलराइट। इस तो बाद एक्सिस बैंक जो है इन्होंने 1 मिलियन तो ज़्यादा कस्टमर्स नूं क्रॉस कर लिया WhatsApp के उपर। RBI ने ऑथोराइज कर दिता है इंडसइंड बैंक नूं कि एक एजेंसी बैंक की तरह काम कर सकते हैं, यानी कि जिन्ने भी गवर्नमेंट टेंडर वगैरह होंगे हैं इन्हां दे लई हुण ये भी पार्टिसिपेट कर सकणगे, ओके। वॉट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2021। तो जो ग्लोबल क्रिप्टो इंडेक्स है इहदे विच 2021 दे विच भारत ने 91वां स्थान हासिल किया। तो पूरी दुनिया दे विच जो क्रिप्टो करंसी है ना इनू अपनाउण दे मामले दे विच भारत जो है 2nd नंबर के उपर रहा। और ये रिपोर्ट हाल ही दे विच US बेस्ड एक संस्था वजों रिलीज़ की गई है, राइट। इनके अनुसार जो क्रिप्टो करंसी है ना इनू अपनाउण दे विच टोटल जो टॉप 5 कंट्रीज़ है ये 5 दियां 5 ही एशिया दे विच हैगियां, राइट। पहला रैंक किनू मिलिया वियतनाम नू, दूसरा इंडिया नू, राइट। और देखो इस रिपोर्ट की खास गल की है कि इंडिया USA UK एंड चाइना दी कंट्रीज़ तो भी अगे निकल गया। और इस रिपोर्ट के विच बोलिया गया कि जो पूरी दुनिया हैगी है इहदे विच क्रिप्टो करंसी अपनाउण दे लई ना जून 2020 तो लैके एंड जुलाई 2021 तक 880% तक का वाधा होया है, राइट। और इंडिया दे विच सब तो ज़्यादा प्रचलित जो क्रिप्टो करंसी है इसका नाम तुसीं याद रखना है बिटकॉइन, ओके। एंड ईवन इंडिया के जिहड़े छोटे छोटे टाउनस हैगे है उन्हां दे विच भी क्रिप्टो करंसी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, ओके। इस तो बाद आप देखांगे कुछ होर रीसेंट रैंक्स एंड रिपोर्ट्स। तो जो एप्पल है ये पूरे दुनिया की सब तो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनी है, राइट। और ये वाला जो इंडेक्स है ये ह्यूरन ग्लोबल 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी की 2021 की लिस्ट में जारी किया गया। और अगर आप टॉप 3 कंपनीज देखते हैं तो पहली है एप्पल, फिर है माइक्रोसॉफ्ट एंड फिर है Amazon, ओके। और जो गाजियाबाद है ये वर्ल्ड का 2nd मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बनया 2020 का। इसकी लोकेशन तुहानूं मिलेगी यूपी दे विच। और ये वाली जो रिपोर्ट है ये ब्रिटिश कंपनी जिसका नाम है हाउस फ्रेश इसके वालों लॉन्च की गई। एंड दे जो 50 मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज जो है ना सिटीज़ है ये जो है जारी की गई। एंड गाजियाबाद दूसरे नंबर के उपर आई है। इंडिया जो है ये 122वें नंबर के उपर रहा न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट के विच, ओके। और एंड टोटल 181 कंट्रीज़ नूं शामिल किया गया सीगा। और इनू कॉमनवैल्थ सैक्रटरीएट जो कि लंडन के विच है इनके वालों लॉन्च किया गया। दैन 7 इंडियन कंपनीज इन्हों फॉर्चून ग्लोबल 500 2021 की लिस्ट में शामिल किया गया, राइट। और अगर आप गल करते हैं इंडिया के सब तो पहले नंबर के उपर किहड़ी रही तो रिलायंस इंडस्ट्री टॉप के उपर रही। इंडिया जो है 20वें नंबर के उपर रहा ग्लोबल स्टार्टअप ईकोसिस्टम इंडेक्स 2021 दे विच, ऑलराइट। और ये याद रख लेना कि 2019 दे विच इंडिया का जो रैंक है 17th सीगा
और 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 23rd ਰੈਂਕ ਸੀ ਆਲਰਾਈਟ ਔਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 20th ਰੈਂਕ ਦੈਨ ਜਮਸ਼ੇਦਜੀ ਟਾਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਫਿਲੈਂਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲੈਂਥ੍ਰੋਪਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਟਾਟਾ ਓਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਰਨ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਡਲਗਿਵ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਔਰ ਓਨਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਜ਼ੀਮ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 12ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਐਸੇ ਹੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਓਕੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਏ ਹੈ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੱਲ ਦੇ ਖਾਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਐਂਡ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਜੋ ਪਾਠ ਹੈ ਆਈ ਮੀਨ ਇਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੱਲ till then take care keep studying bye bye